Hello everyone, myself Shamia Choudhury, PGT Chemistry. Today I will take your class, means it is a second class of hydrogen chapter, okay. Already I have discussed introductory part of hydrogen chapter, okay. You can see my previous video, then you see this one, okay. In previous class already I have discussed the position of hydrogen, okay. Means position of hydrogen, it will be placed separate in the modern periodic table because the properties of hydrogen is resembles with what alkali metal also and halogen also, okay. So that it placed in separate position of modern periodic table. Now question is what which property is matched, okay, which property is same between hydrogen and alkali metal, okay. This is our topic. तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके. By this point we can say that the property of hydrogen and alkali metal are same, okay. First of all you should know what are the alkali metals. Alkali metals are lithium, sodium, then potassium, then rubidium, then cesium, then francium, okay. So what are the electronic configuration of hydrogen? Electronic configuration, the atomic number of hydrogen, it is 1, so that its electronic configuration it will be 1s1, okay. And for alkali metal, what happened for alkali metal like lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, what is the electronic configuration? In case of lithium, the electronic configuration is what, 1s2 2s1, okay. And for sodium, what happened, the electronic configuration, it will be 1s2 2s2 2p6 3s1, okay. And in case of potassium, you can see the electronic configuration up to 4s1, okay. Then there are 1s2 2s2 2p6 3s2 like this, and after at the outermost shell electrons it is 4s1, okay. So from this electronic configuration you can conclude that, 1 minute. Yes, from this electronic configuration, you can conclude that the properties of hydrogen and alkali metal are same, because in case of hydrogen, what happen, the outermost shell means it's contain 1 electrons, okay. In case of lithium, what happen, outermost shell means 2s, it's contain 1 electron. In case of sodium, the outermost shell it's contain what, 1 electron, okay. Means हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन से, एंड जो एल्काली मेटल है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सबका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ पे क्या है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है वहाँ पे क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है. मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है, फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी वी कैन से दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड एल्काली मेटल्स आर सेम, ओके. Because you can see here hydrogen, lithium, sodium, their electronic configuration, outermost electronic configuration is same, ठीक है. जो outermost electronic configuration है वो same है, क्योंकि सबका outermost shell में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है. मीन्स ये एक सिमिलरिटी है, किसके साथ सिमिलरिटी है, हाइड्रोजन के साथ एल्काली मेटल का, ठीक है. हाइड्रोजन के साथ एल्काली मेटल का ये जो प्रॉपर्टी है ये सिमिलर है, ठीक है. तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ठीक है. तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज करना, ठीक है. अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिए तो वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है. मतलब वो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, ठीक है. तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड ए गेन ए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ओके. तो अभी कंपैरिजन कर लो हाइड्रोजन एंड एल्काली मेटल के साथ. तो हाइड्रोजन का तो आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है. तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, हाइड्रोजन हैज बोथ टेंडेंसी, ओके. इट कैन एक्सेप्ट और इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो हाइड्रोजन इफ इट लूज 1 इलेक्ट्रॉन देन व्हाट हैपन, इट विल बी फॉर्म, it can form proton, okay. तो हाइड्रोजन
it has positive character, electropositive character. Okay, and from electronic configuration you see that in case of alkali metal means lithium, sodium, potassium, उसका सबके outer most shell में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एंड इनर मोस्ट जो शेल है उसके अंदर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे इन केस ऑफ सोडियम देख सकते हो इनर मोस्ट शेल में क्या है 6 + 2 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मतलब वो स्टेबल फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन आउटर मोस्ट शेल में क्या है उसका 1 इलेक्ट्रॉन से, लेकिन वो तो नहीं चाहिए। अगर उसने उसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो अगर लूज कर दिया, ठीक है, तो उसका इनर मोस्ट शेल में जो ऑर्बिटल्स है वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो उसका टेंडेंसी क्या होगा, उसका जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन से वो लूज करना, ठीक है। whenever it can lose 1 electron then it will be carry 1 positive charge। okay, so it has tendency to lose 1 electron means it has electropositive character। okay, as for example sodium, it lose 1 electron, okay, it form Na plus। okay, you can show like some other alkali metals like sodium के बाद क्या है potassium, it can also lose 1 electron। okay, then it will converted to it will be converted to K plus means potassium plus। okay, means each and every alkali metal it has electropositive character and hydrogen also it has electropositive character, ठीक है। means the property of hydrogen, and alkali metals are same। okay, थर्ड प्रॉपर्टी इट इज व्हाट ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी जो है बाय ऑक्सीडेशन स्टेट वी कैन से दैट the property of hydrogen and alkali metal are same। okay, so in case of hydrogen it can lose 1 electron means it will be carry what +1 charge। oxidation state means what is the charge of these elements। okay, hydrogen it carry +1 charge। okay, means its oxidation state is what +1, ठीक है। and alkali metals from electronic configuration you can see that in outermost shell it's contain 1 electron means it has a tendency to lose this 1 electrons means it will be carry +1 charge means its oxidation state is +1। okay, each and every alkali metals contain +1 charge। चार्ज +1 मीन्स उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +1 है, ठीक है। एंड जो हाइड्रोजन है उसका भी चार्ज क्या है +1 है क्योंकि इट कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल बी कैरी +1 चार्ज, ठीक है। तो बाय ऑक्सीडेशन स्टेट वी कैन से दैट द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन एंड alkali metals आर सेम। ओके, क्योंकि हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है एंड जो एल्काली मेटल है, एल्काली मेटल क्या है सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, ये सबका क्या है चार्ज +1 है, एक ही प्लस है, मतलब उसका जो चार्ज है +1 है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ठीक है ना। मतलब जो हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, जो एल्काली मेटल है उसका भी +1 है, मतलब ये प्रॉपर्टी मैच हो गया, ठीक है। मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ही है हाइड्रोजन का एंड एल्काली मेटल्स का, ठीक है। तो बाय ऑक्सीडेशन स्टेट यू कैन से दैट हाइड्रोजन प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन एंड एल्काली मेटल्स आर सेम। ओके, फोर्थ पॉइंट इट इज व्हाट कॉम्बिनेशन विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स क्या है, कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है, अगर उसको tendency here to accept 1 electron then it is known as electronegative element। okay, electronegative element means tendency to attract electron toward itself। okay, this is electronegative element। okay, as for example halogen, ठीक है, हेलोजन उसका आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कोई भी हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 7 इलेक्ट्रॉन है, so that it has a tendency to accept 1 electron। if it can accept 1 electron then what happen, it will be 8 and this is the stable configuration, ठीक है। and so that halogen atom it has इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बिकॉज इट हैज़ अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, ठीक है। यहाँ पे कोई और एक एलिमेंट है तो वहाँ से क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को उसके पास लेकर आ जाएगा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है, ठीक है। अगर उसको और 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो क्या होगा, ऑक्टेट होगा, ठीक है। मतलब इट हैज़ ए टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, ठीक है। तो हेलोजन है, ऑक्सीजन भी क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्योंकि ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। सपोज मान लो उसको कोई और एलिमेंट है वहाँ से
टू इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अगर दे दिया है तो वो क्या होगा, स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। सो इट हैज़ ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर, ओके। इट हैज़ ए टेंडेंसी टू attract electron toward itself, okay, so that it has a tendency to accept two electrons, okay, so that oxygen, it is also electronegative element, okay। now our point is what, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया है what is electronegative element, okay। point is what, combination with electronegative element means जो हम कंपैरिजन स्टडी कर रहे हैं ना हाइड्रोजन एंड एल्काली मेटल का, तो हाइड्रोजन भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होकर कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, एंड जो एल्काली मेटल है वो भी क्या करेगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके साथ कंबाइन होकर सेम टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन से दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड एल्काली मेटल्स आर सेम, ठीक है। Alkali metals like sodium, potassium react with oxygen to form oxide. Hydrogen also react with oxygen to form water, ठीक है। जो सोडियम पोटेशियम है ये सब क्या है, एल्काली मेटल है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके क्या करेगा, ऑक्साइड फॉर्म करेगा, एंड व्हिच टाइप ऑफ ऑक्साइड इट विल बी फॉर्म, Na2O, K2O, दिस टाइप ऑफ ऑक्साइड विल बी फॉर्म, ओके। सो दैट but we can say that sodium and potassium means alkali metal react with oxygen, it form what, oxide, okay। but in case of hydrogen what happen, hydrogen also react with the electronegative element oxygen and it form what, water, H2O, ठीक। हाइड्रोजन का भी ये टेंडेंसी है, वो भी क्या करेगा, जैसे एल्काली मेटल ने क्या किया है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर जो कंपाउंड फॉर्म किया है ना, वैसे ऑक्साइड फॉर्म किया है, वैसे क्या करेगा हाइड्रोजन भी क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर क्या करेगा, वो एक कंपाउंड फॉर्म करेगा, वो एक हाँ ठीक है, जो ऑक्साइड फॉर्म करेगा, दिस इज व्हाट, H2O। तो ये देख सकते हो, ये जो प्रॉपर्टी है एल्काली मेटल का एंड हाइड्रोजन का, ये सेम ही है, ठीक है ना। नाइट्रोजन का भी जो ऑक्साइड है Na2O एंड पोटेशियम का जो ऑक्साइड फॉर्म है K2O, और हाइड्रोजन ने जो ऑक्साइड फॉर्म किया है वो क्या है, H2O, मतलब सेम ही है, सेम टाइप का ऑक्साइड फॉर्म किया है, ठीक है। तो ये और एक प्रॉपर्टी मिल गया, सिमिलरिटीज बिटवीन हाइड्रोजन एंड एल्काली मेटल्स, ओके। यहाँ पे तो मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन किया था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो सिर्फ ऑक्सीजन है नहीं, और भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लाइक हैलोजन, हैलोजन के अंदर क्या क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, दीज आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो हम और भी एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, लाइक क्लोरीन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। वो क्या करेगा, जो एल्काली मेटल है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उसके साथ रिएक्ट करके दिस टाइप ऑफ हैलाइड फॉर्म करेगा, ठीक है, मतलब NaCl, KCl, LiCl, ठीक है, LiCl, ठीक है, दिस टाइप ऑफ हैलाइड विल बी फॉर्म, ओके। In case of hydrogen also, it can also react with chlorine, it will be formed this type of halide, means HCl, okay। So from this point of view we can say that the property of hydrogen and alkali metal are same, okay। Next there are another electronegative element means sulfur, okay। alkali metal like sodium, potassium react with sulfur to form sulfide, okay। hydrogen also react with sulfur to form hydrogen sulfide, means ये और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो क्या है, सल्फर, ठीक है। तो उसके साथ सोडियम या फिर पोटेशियम, कोई भी जो एल्काली मेटल है वो रिएक्ट करके क्या करेगा, जो सल्फाइड फॉर्म करेगा, उसका टाइप क्या होगा, Na2S होगा। पोटेशियम रिएक्ट करने के बाद K2S, इस टाइप का सल्फाइड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो जैसे एल्काली मेटल ने सल्फाइड फॉर्म किया है, like this hydrogen also react with sulfur, it can form this type of, means hydrogen sulfide H2S, this type of sulfide it will be formed, okay। So from this point of view we can say that the properties of hydrogen and alkali metals are same, okay। This is the another important points, this is what, liberation at cathode, ठीक है। from means electrolysis process we can say that the properties of hydrogen and alkali metal are same, okay। this is the another property, this is property number 5, okay। if we carry out the electrolysis of NaCl then sodium is liberated at cathode and chlorine is liberated at anode, ठीक है। जो सोडियम है वो क्या होगा, कैथोड में लिबरेट होगा, एंड जो क्लोरीन है वो क्या होगा, एनोड में लिबरेट होगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एक कंटेनर में एक इलेक्ट्रोलाइट है
NaCl का जो एक्वस सोल्यूशन है वो तो ऐसे डिसोसिएट नहीं होगा। इन एक्वस सोल्यूशन में क्या होगा, जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या करेगा, Na प्लस एंड Cl माइनस में क्या होगा, वो डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, Na प्लस एंड Cl माइनस में वो डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये तो बैटरी कनेक्शन हो गया। एंड ये क्या है, इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये निगेटिवली है और ये पॉजिटिव का है। तो पॉजिटिव है तो उसका नाम क्या है, एनोड, एंड जो निगेटिव है वो उसका नाम क्या है, कैथोड है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इन कंटेनर इट्स कंटेन इलेक्ट्रोलाइट इन aqueous solution, it is sodium chloride and it is associated to from Na plus and Cl minus. Now what happened, Na plus, this is positive charge, it will be go towards what, cathode, because cathode it is negatively charged. Okay, Na sodium it carry positive charge, positive and negative attract each other. Okay, so that sodium would be moved towards cathode. Okay, मतलब कैथोड में क्या ऐड होगा, कैथोड के अंदर सोडियम ऐड होगा। ठीक है, सोडियम वहाँ पे मतलब सोडियम विल गो टुवर्ड्स कैथोड। ठीक है, एंड जो Cl माइनस है सोल्यूशन के अंदर वो क्या करेगा, एनोड के तरफ जाएगा, क्योंकि Cl माइनस का उसका चार्ज क्या है, माइनस से, वो किस डायरेक्शन में जाएगा, जहाँ पे क्या है, प्लस साइन है। ठीक है, मतलब एनोड में प्लस साइन है, सो दैट क्लोरीन विल बी मूव्स टुवर्ड्स द एनोड। ओके, तो फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस वी कैन से दैट इन कैथोड sodium is liberated. ठीक है, sodium is liberated in cathode. If you use here like any other electrolyte like KCl, okay, any other alkali metal, ठीक है, you can use, then what happen, sodium will be deposited in what, cathode. ठीक है, मतलब alkali metal जो है वो क्या करेगा, मेटल का जो आयन है Na प्लस से वो क्या होगा, कैथोड में लिबरेट होगा। ठीक है, तो ये तो एल्काली मेटल का मैंने बोला है। ठीक है, सब अभी क्या करना है, कंपैरिजन स्टडी करना है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर है, उसके अंदर क्या है, कंटेनर के अंदर क्या है, HCl है। ठीक है, तो इन एक्वस सोल्यूशन HCl क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा H प्लस एंड Cl माइनस में। ठीक है, तो दिस इज बैटरी, whenever current is passed there, then you already know if it is positive charge, then it is what, anode, and this is what, cathode, because it carry negative charge. Okay, so what happen, HCl it is dissociated to H plus and Cl minus, then what happen, hydrogen will be moved towards what, कैथोड, क्योंकि कैथोड का चार्ज क्या है, माइनस है, एंड हाइड्रोजन उसके ऊपर प्लस साइन है, वो क्या करेगा, कैथोड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, एंड जो Cl माइनस है वो किस तरफ मतलब मूव करेगा, इन फ्रॉम टुवर्ड्स एनोड। ठीक है, तो हाइड्रोजन इट्स मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड क्लोरीन इट इज मूव टुवर्ड्स व्हाट, एनोड। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है वैसे हम क्या कंक्लूजन में आ सकते हैं, मतलब जो कैथोड होगा ना, कैथोड के इन कैथोड में क्या लिबरेट होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन लिबरेट हुआ है, H प्लस आया कैथोड में लिबरेट हुआ है। ठीक है, एंड प्रीवियस जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हमने सोडियम क्लोराइड लेकर हमने किया था, वहाँ पे भी हमने देखा है जो कैथोड है ना, कैथोड के अंदर क्या मतलब लिबरेट हुआ था, Na plus. ठीक है, if you use electrolyte, another electrolyte like KCl, then it will be liberated in cathode it is K plus. Okay, means Na plus liberate हुआ था। ठीक है, in previous case. So from this point of view we can say that in both the cases hydrogen is also liberated in cathode. Okay, and alkali metal, ये जो सोडियम है वो क्या है, alkali metal है, ये भी क्या हो रहा है, कैथोड के अंदर लिबरेट हो रहा है। मतलब क्या है, प्रॉपर्टी सेम ही है, हाइड्रोजन का भी लिबरेशन कैथोड में हो रहा है, सोडियम का लिबरेशन भी कैथोड के अंदर हो रहा है, कैथोड में हो रहा है। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन का एंड एल्काली मेटल का, ये क्या है, सेम है। तो ये तो मतलब फिनिश्ड है, जो कुछ प्रॉपर्टी है और भी प्रॉपर्टी है, मैंने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सिलेक्ट किया है। जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी से हम ये बता सकते हैं क्या है, जो प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन एंड एल्काली मेटल का वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस देयर आर सम एक्सेप्शनल केस, मीन्स इन सम पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन से दैट there is some difference between hydrogen and alkali metal is also there. So in next class I will discuss this. Okay. Okay.
If you have any doubt, then please let me know in comment box, so that in next class I will discuss. Okay, thank you.